مہنگائی کے دور میں مزدور کی ماہانہ اجرت صرف 20,000 روپے مقرر۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں باقاعدہ اضافہ تو نہ کیا، البتہ 10% ایڈ ہاک ریلیف کے نام پر ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا، جبکہ مہنگائی کے اس دور میں مزدور کی ماہانہ اجرت صرف 20,000 روپے مقرر کی گئی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر۔ حکومت نے پچھلے سال معاشی بدحالی کا بہانہ بنا کر تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ اس بار مہنگائی کے سونامی میں بھی تنخواہوں میں باقاعدہ اضافہ تو نہیں کیا اور 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دے کر ہی ٹرقا دیا۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی صرف 10% ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور پینشن میں اضافہ 1 جولائی سے ہوگا۔ 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اردلی الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ گریڈ 1 سے 5 تک کے ملازمین کے انٹیگریٹڈ الاؤنس 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اردلی الاؤنس میں الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے مزدور طبقے کو بھی کوئی بڑا ریلیف نہ مل سکا۔ جہاں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کئی گنا بڑھیں تو ایسے میں مزدور کی ماہانہ اجرت 17,500 سے بڑھا کر صرف 20,000 روپے ہی مقرر کی گئی ہے۔ مقامی موبائل فون سستا اور درآمدی مہنگا، 3 منٹ سے لمبی کال اب مہنگی پڑے گی۔ چھوٹی گاڑیاں سستی ہو جائیں گی۔ 850 سی سی تک گاڑیوں کو سیلز ٹیکس، ویلڈ ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں ریلیف دیا جائے گا۔ الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے صرف 1% کر دیا گیا۔ اب موبائل پر لمبی گپ شپ پڑے گی مہنگی۔ حکومت نے بجٹ میں 3 منٹ سے زائد جاری رہنے والی موبائل فون کالز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ یہی نہیں، انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور SMS پیغامات پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ ہوگی۔ دوسری طرف موبائل فون سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے کم کر کے 10% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ موبائل فون کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے، جس سے درآمدی فون مہنگے ہو جائیں گے۔ بجٹ میں چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے 12.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مقامی سطح پر تیار کردہ چھوٹی گاڑیوں کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے بھی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ 850 سی سی تک درآمدی گاڑیوں پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی پر چھوٹ دینے اور ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 1% کرنے اور 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے۔ مقامی طور پر تیار ہیوی بائک اور ٹرک کی مخصوص اقسام پر ٹیکسز میں کمی کی تجویز ہے۔ تاجروں و صنعتکاروں نے وفاقی بجٹ کو متوازن قرار دے دیا، جبکہ چھوٹے تاجروں نے بجٹ نصرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود انہیں کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، بالواسطہ ٹیکسوں کا نزلہ ان پہ گرے گا۔ وفاقی بجٹ پر رد عمل دیتے ہوئے لاہور چیمبر کے عہدیداران نے اس بجٹ کو متوازن بجٹ قرار دیا ہے، جبکہ چھوٹے تاجران کہتے ہیں اس بجٹ میں شٹر والے تاجر کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گزشتہ بجٹوں کی طرح الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں وفاقی بجٹ کی تقریر سننے کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور چیمبر کے صدر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، نائب صدر طاہر منظور چودھری، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران، سابق صدور اور تاجروں کے نمائندوں نے انہماک سے بجٹ تقریر سنی۔ صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح نے کہا کہ خام مال پر ڈیوٹیز میں کمی، چھوٹی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا خاتمہ اور FIA کو جہانگیر ترین کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے۔ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA چاند اشرف کا عدالت میں بیان، جہانگیر ترین اور علی ترین نے عبوری ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں۔
एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग और कारपोरेट फ्रॉड के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर FIA चांद अशरफ ने अदालत में बयान दिया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। FIA इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती, इन्हें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। इसी तरह जाली बैंक अकाउंट्स केस के अंदर जमानत की दरखास्तें वापस ले ली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि वो बेगुनाह थे। FIA ने इनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि केसेस में रिलीफ का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि हमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूँ, देखें, ये जो FIR है मेरे ऊपर, इनका और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। FIA की जानिब से अदालत को बताया गया कि अगर इन्हें जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो इन्हें 7 दिन पहले आगाह किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की शुगर स्कैंडल के हवाले से तहकीकात FBI के हवाले करने का फैसला। FIA हुकाम का कहना था कि सट्टा माफिया ने 100 अरब रुपए चीनी की कीमतें बढ़ाकर कमाए, टैक्स चोरी किया, जिसकी तहकीकात FBI करेगा। जहांगीर तरीन पर मुकदमात की लटकती तलवार अभी हटी नहीं। FIA हुकाम का कहना है कि जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ समेत दीगर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई FBR करेगा। FIA ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल मालिकान सट्टाबाजी में मुलविस हैं। 100 अरब रुपए से जायद की रकम चीनी की सट्टाबाजी के जरिए कमाई गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज शरीफ, खुसरो बख्तियार समेत दीगर शुगर मिल मालिकान के कैश बॉय एक ही निकले। FIA हुकाम का कहना था कि तमाम रिकॉर्ड और तहकीकाती रिपोर्ट DG FIA समेत शहजाद अकबर को भी फराहम कर दी गई है। चीनी की सट्टाबाजी से अरबों रुपए का टैक्स भी चोरी किया गया। FIA टैक्स रिकवरी नहीं कर सकती। ये काम FBR का है, जिसको केस अब भिजवाया जाएगा। गर्मी बढ़ गई, बच्चों के इम्तिहान हो जाएं। 14 रोज बाद स्कूल दोबारा बंद होंगे। पहली ता 8वीं इम्तिहानात 18 से 30 जून तक होंगे। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया। गर्मी बढ़ गई, बच्चों के इम्तिहान हो जाएं। 14 रोज बाद स्कूल दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। पहली ता 8वीं इम्तिहानात 18 से 30 जून तक होंगे। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है। सहाफ़ी कॉलोनीज़ फेज़ 2 पर अमल दरामद ना होने पर सदर लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ियों ने फिरदौस आशिकावान के सामने भरपूर एहतजाज किया। और ये जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, CM के सारा स्टाफ करप्ट है, सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। और पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए रिहायशी स्कीम का फेज 2 शुरू करने का कई बार वादा किया, लेकिन अमल दरामद की नौबत नहीं आई। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने फिरदौस आशिकावान की मौजूदगी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि 3 साल से सहाफ़ियों के साथ मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। अरशद अंसारी ने कहा, मावने खसूसी इतलात को बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने बजट इजलास के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया है। शहर के इर्द गिर्द ज़रई ज़मीन को महफूज बनाया जाएगा। ग्रीन एरिया और ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई जा सकेगी। महकमा बल्दियात ने पाबंदी लगा दी। महकमे बल्दियात ने ज़री ज़मीन को बचाने के लिए हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी का फैसला किया है। महकमे बल्दियात की जानिब से LDA को अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर के आसपास ज़री ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें न बनने दी जाएं। महकमे बल्दियात ने LDA को ज़री ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें बनने से रोकने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में महकमे बल्दियात ने तमाम बल्दियाती इदारों को भी हिदायत जारी कर रखी है। तमाम बल्दियाती इदारों को भी हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म की लाहौर में ग्रीन एरियाज़ और गैर कानूनी स्कीम्स की रोकथाम में दिलचस्पी के असरात। LDA 1 माह के दौरान 79 गैर कानूनी स्कीम्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने में कामयाब हो गया। वज़ीर आज़म के वाज़े हुक्म के बाद शहर के मुख्तलिफ थानों में 4 साल कबल दिए गए इस्तगासों पर भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इससे कबल LDA और पुलिस की मिली भगत से ताकतवर सोसाइटी मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराना नामुमकिन था। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म ने वाइस चेयरमैन से इत्तफाक करते हुए रुके हुए मुकदमात के अंदराज का हुक्म दिया था। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 11,000 मुतासरीन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद 10 साल बाद नैब में पेश हो गए।
ईडन हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नैब हुकाम को 13 अरब रुपए के क्लेम वसूल हुए। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए डॉक्टर अमजद को 19 अरब रुपए पहली बारगीन का कहा है। नैब टीम ने इस्तफसार किया कि शहरियों के साथ 10 साल कबल फ्रॉड हुआ। मौजूदा दौर में शहरियों के लिए प्रॉपर्टी पुरानी कीमत में प्लाट लेना मुमकिन नहीं। डॉक्टर अमजद का कहना था कि क्लेम की रकूम 8 से 9 अरब रुपए बनती है। मुतअद्दिद शहरियों को रकूम वापस कर चुका हूँ, जिस पर नैब ने तमाम अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर दिया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर अमजद 1 अरब रुपए बतौर प्ली बारगीन फराहम कर चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस का वन वे की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 29 ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। 78 गाड़ियां थानों में बंद। 2 रोज में 4,500 गाड़ियों के चालान किए गए। शहर में नौसरबाज ग्रुप सरगर्म हो गया। 2 घरों के बाहर से बिजली के मीटर उड़ा ले गए। न्यू चुपुर्जी पार्क में उमर और सकलैन के मीटर उतार दिए गए। मुल्जिमान मीटर की जगह अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ गए। इत्तला मिलने पर कानून हरकत में आ गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वक्त आ चुका है दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अमली इकदाम करे। गवर्नर पंजाब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान होने वाली मुलाकात में दौरा अमरीका, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर खारजा को अमरीकी ओहदेदारान से होने वाली मुलाकातों के बारे में भी बताया। गवर्नर पंजाब और वजीर खारजा ने कैनेडा में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बजट सेशन की तैयारियों के सिलसिले में इजलास हुआ। हमजा शहबाज कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में अवाम से झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि 3 साल में हुक्मरानों ने मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया। होशुबा महंगाई की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, प्रोफेशनल गोल्फर्स के इंतखाब के लिए पाकिस्तान क्वालिफाइंग गोल्फ टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है। टॉप 55 गोल्फर्स को प्रोफेशनल गोल्फ कार्ड जारी कर दिए गए। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में होने वाले टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 115 गोल्फर्स को कार्ड जारी किए जाएंगे। इवेंट के टॉप 55 गोल्फर्स पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान प्रोफेशनल गोल्फ सर्किट में हिस्सा लेने के अहल होंगे। क्वालिफाइंग इवेंट में मजमूई तौर पर 284 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। पहले मरहले के इख्तिताम पर 121 गोल्फर्स ने फैसला कुन मरहले के लिए क्वालिफाई किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।